شہرپور کے محلہ بھرگڑی میں سیوریج کا نظام مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو چکا ہے، جس کے باعث گندا پانی نہ صرف شہریوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے بلکہ مساجد اور قبرستان میں بھی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار متعلقہ انتظامیہ کو شکایات درج کروائی گئی ہیں، لیکن کسی قسم کا عملی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ شہریوں کا صبر اب جواب دے چکا ہے اور وہ شدید پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد عمران مانگن۔ عمران، بتائیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں خیرپور کے علاقہ بھرگڑی کے محلہ ابڑوں میں، جہاں پر علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں کہ ان کے گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے۔ سیوریج کا جو پانی ہے تمام گندا ان کے مین روڈ پر کھڑا ہے۔ یہاں پر ان کا سکول، جو بچے ہیں سکول ان کا جانا دشوار ہے۔ جو بڑے بزرگ ہیں ملیریا کی بیماریوں کی وجہ سے وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ مزید وہ ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ سر 25-20 دن ہو گئے، یہ مین راستہ ہے بھرگڑی کا شہر جانے کے لیے۔ بچے اسکول یہاں سے جاتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، لیکن 20-25 دن ہو گئے یہاں پہ پانی کھڑا ہے، نہیں پانی نکالا جا رہا ہے، نہیں رستہ صاف کیا جا رہا ہے۔ بچوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ نامی اور 10ویں کے پیپر چل رہے ہیں، یہاں سے بچیاں جاتے ہیں، بڑے جاتے ہیں، یہاں سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نماز پہ کوئی نہیں جا سکتا، پیچھے مسجد ہے ہمارے، یہاں پہ کوئی نماز کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ قبرستان دے رہے، قبرستان میں اندر جی بالکل، آپ نے شہریوں کی بات سنی علاقہ مکینوں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے، یہاں نہ ہماری بچیاں گزر سکتی ہیں، ہم اپنے جنازے بھی یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ بار بار ہم نے انتظامیہ کو اس بارے میں درخواست کی ہے، لیکن انتظامیہ کے سر سے جوں بھی نہیں رینگ رہی، اور نہ ہی وہ ہمارے انہوں نے مطالبہ کیا انتظامیہ سے کہ وہ جو نکاسی کا نظام ہے اس کو بہتر کریں تاکہ ہم یہاں سے سکون سے زندگی گزار سکیں۔ جی شیل آبادکار ویلفیئر ایسوسی ایشن نارا کینال بھوگی مائنز کی اپیل پر جھڈو میں نیو بائی پاس جھڈو سے اسٹیشن چوک تک مارچ کیا گیا۔ سینکڑوں آبادکاروں نے سندھو دریا سے متنازع نہروں، کارپوریٹ فارمنگ اور ڈیموں میں پانی کی مصنوعی قلت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ایاز کھوسو، پروفیسر یوسف راجپوت، میر اعجاز تالپور، احسان جروار، سید ایاز حسین رضوی، موسیٰ احمدانی اور دیگر کی قیادت میں 2 کلومیٹر پیدل مارچ اور دھرنا دیا گیا۔ مارچ میں قوم پرست تنظیموں، عوامی تحریک، جسکم، سندھ ترقی پسند پارٹی اور تحریک انصاف کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسٹیشن چوک پر دھرنے میں عوام کی جانب سے تمام نہریں نامنظور اور زمینوں پر قبضے نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ بورے والا میں سرکاری اسکول کے درجہ چہارم کے نائب قاصد کی ہونہار بیٹی نے ایئر یونیورسٹی سے ایم فل ریاضی میں گولڈ میڈل حاصل کر کے والدین اور شہر کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ طالبہ کائنات نے آئندہ پی ایچ ڈی میں بھی نمایاں پوزیشن لینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عظیم طور کی رپورٹ میں۔ ہونہار بیٹیاں والدین کا فخر ہوتی ہیں۔ بورے والا کی ایک ایسے ہی ہونہار طالبہ کائنات جو سرکاری اسکول کے درجہ چہارم کے ملازم کی بیٹی ہیں، جنہوں نے ایئر یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم فل ریاضی کے امتحان میں گولڈ میڈل حاصل کر کے نہ صرف والدین بلکہ اساتذہ اور اپنے شہر کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کائنات کا کہنا ہے کہ اس کی کامیابی والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جس طرح میں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی میں پی ایچ ڈی میں ایک نمایاں کامیابی کے ساتھ اپنے شہر اور ملک کا نام روشن کروں گی۔ میں کائنات یاسین بورے والا سے ہوں۔ میں نے ریسنٹلی ایم فل میتھمیٹکس فرام ایئر یونیورسٹی اسلام آباد اس ملتان کیمپس سے کمپلیٹ کیا۔ میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے اور اپنے اساتذہ کی محنت سے یہ فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ایم فل میتھمیٹکس میں، اور گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ جبکہ کائنات کے والد کا کہنا ہے کہ اس نے تنگ دستی اور وسائل کی کمی کے باوجود رزق حلال سے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے۔ آئندہ بھی رزق حلال سے ہی میری بیٹی مزید کامیابیاں حاصل کرے گی۔ گورنمنٹ گرلز کمیونٹی ماڈل اسکول میں نائب قاصد کی ملازمت کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو بالکل حلال رزق سے کھلایا ہے اور بڑی محنت سے اس کو تعلیم دلوائی ہے، اور اس نے ایئر یونیورسٹی سے ایم فل میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اور آگے بھی میں اس کو اپنی محنت اور لگن سے رزق حلال سے آگے بھی اس کو میں پڑھاؤں گا۔ کائنات کے چچا اور کزن بھی اس کامیابی پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ایسی ہونہار بچیوں کی حکومتی سطح پر مزید سرپرستی کی جائے تو یہ ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عظیم نور، چینل 5 بورے والا۔
एक और हवा की बेटी हुई जुल्म का शिकार। दूसरी शादी की इजाज़त न देने पर शौहर ने बीवी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी है। 25 साल ज़ैनब बीबी का 60% जिस्म झुलस गया है। इलाज के लिए भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में स्ट्रेचर तक ना मिला है। बेबस माँ और मजबूर भाई जख्मी बहन को ज़मीन पर लिटाने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ भावलपुर जावेद चौधरी से। जावेद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या कंडीशन है मुतासरा खातून? बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में ज़मीन पर लेटी हुई ये 25 साल ज़ैनब है, जिसको और किसी ने नहीं, उसके शौहर ने मिट्टी का तेल डालकर 27वें रोज़े को जलाया है। लेकिन उसने मशरकी औरत का सबूत देते हुए उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं की। उसके वालिदैन को जब पता चला है, उसके भाइयों को पता चला है, तो वो उसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। मेरे साथ उसके भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या माजरा है। बहुत ज़ोरों का तशद्दुद किया और फिर इनके जो शौहर की जो बहन है, रात को उसने पकड़ा है और उसके शौहर ने ना मिट्टी का तेल डाल कर उसको जलाया है। ये चीखती रह गई, चलाती रह गई कि मुझे ना ये करो। तो पहले रोज़े के साथ भी मारते रहे इनको खाना नहीं दे रहे थे, तो फिर इन्होंने फिर भी हमें नहीं बताया। जी, जुल्म की ये दास्तान है कि उनका फिर किस तरह का इलाज हो रहा है और उनकी पुलिस किस तरह की मदद कर रही है। FIR दर्ज हो गई है, लेकिन ये वो कहानी है जो घर घर की कहानी है। यहाँ पे जब एजुकेशन की कमी है, इस खातून ज़ैनब को सिर्फ शादी के 1.5 साल बाद इस बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये अपना इंसाफ चाहे तो किससे चाहे, ये एक बड़ा सवाल है। जी, खानपुर में पंजाब कल्चर की मुनासबत से गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बस्ती झटकी खानपुर में शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तालबात और टीचर्स ने रिवायती लिबास में पंजाबी सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। तालबात ने अपनी तहजीब और तमद्दुन से गहरी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने रिवायती रंगों को दुनिया के सामने फ़ख्री अंदाज में पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं खानपुर से सलीम मुगल। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानपुर में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल झटकी बस्ती में शानदार कल्चर डे की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चीफ गेस्ट शगुफ्ता मलिक, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री रहीमर खान और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना ताहिर अल्ताफ ने शिरकत की। इस रंगारंग सकाफ तकरीब में टीचर्स और तालबात खूबसूरत सकाफती लिबास में मलबूस सकाफत की कासी कर रही थी। सकाफती तकरीब के शुरुआत का कहना था कि CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक जो है तमाम स्कूल्स ने पंजाब कल्चर को प्रोमिनेंट करने के लिए डिफरेंट स्टॉल्स लगाए। हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये हर साल हम मनाते हैं ताकि बच्चों में अपनी सकाफत से मुतल्लिक जो है मोहब्बत पैदा हो, बच्चों को पता हो कि हमारी सकाफत क्या है। पूरे पंजाब में पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है, जिस के सिलसिले में बस्ती झटकी में मुझे पंजाब कल्चर दिया गया था और मेरी बच्चियों ने बहुत अच्छी तरह इसको रिप्रेजेंट किया। हमने हीर रांझा बनाया, उन बच्चियों ने अपना प्रोग्राम पेश किया और सबके दिल जीत लिए। सकाफती तकरीब के मौका पर स्कूल में हर सू सकाफत के खूबसूरत रंग बिखरे हुए थे। तालबात और टीचर्स का कहना था कि जिंदा कौमें अपनी सकाफत कभी फरामोश नहीं करती। ऐसे सकाफती प्रोग्राम सरकारी सतह पर लाजमी होने चाहिए ताकि आने वाली नस्ल भी अपनी सकाफत से रोशनास हो सके। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। हाफिजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, गाड़ी जब्त कर दी गई, जबकि 235 किलो नाकिस गोश्त भी तलब कर दिया गया। गोश्त को हाफिजाबाद के नवाही इलाकों से शहर में सप्लाई किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, जो मैदे, जिगर और दीगर संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फैसलाबाद में नए तालीमी साल पर तलबा और तालबात वालिदैन के हमरा बुक सेंटर से किताबें कॉपियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। किताबों और कॉपियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने से वालिदैन माली दबाव का शिकार हो गए। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट। ताबड़तोड़ महंगाई के असरात तलबा और तालबात के लवाजमात पर भी असरअंदाज होने लगे। किताबों और कापियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने से मतवसत तबका से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालबात के लिए हसूल तालीम दुश्वार हो चुका है। नए तालीमी साल का आगाज होते ही पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी बुक सेंटर्स पर किताबें, कापियां और दीगर अशिया की खरीदारी करने वालों का रश बढ़ गया है, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर कीमतें सुनकर वालिदैन ज़हनी दबाव का शिकार है। ये बच्चों को कैसे क्वालिफाइड बनाएंगे जब इतनी महंगी बुक्स और सिलेबस इतना महंगा होगा। 2-2 हज़ार रुपए का एक बुक सेल हो रही है, कैसे बच्चों का सिलेबस हम मैनेज करें।
स्कूल वाले मतलब अलग उनको मतलब अंडर प्रेशर करते हैं कि बच्चों की ये नोट्स बुक्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। दुकानदारों से किताबें महंगी होने का शिकवा किया जाए तो वो कागज और दूसरे लवाजमात महंगा होने का रोना रोते हैं। जो कहते हैं कि यार इतना रेट क्यों ज्यादा है, जबकि पिछले साल हम यही जो 4,000 की लेके गए वो 8,000 की लेनी पड़ रही है। तो ये मसला ये हो गया है कि जब इनसे कहते हैं तो कहते हैं पेपर का रेट बढ़ गया, प्रिंटिंग का रेट बढ़ गया। भाई अल्लाह के बंदो, कम से कम किसी चीज पे तो कंट्रोल करो। अमीपुर बाजार की होलसेल मार्केट में तमाम अकसाम की दरसी कुतब की कीमत 500 रुपए से 2,000 रुपए तक है, जबकि कापियों और रजिस्टर की कीमत में भी 100% इजाफा किया गया है। किताबों और कापियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी के लिए बच्चों को तालीम दिलवाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। हाफिजाबाद में जहरीली मिठाई खाने से 3 बच्चे जहाँ बहक हो गए हैं, जबकि 5 बच्चों को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ वाक़े का मुकदमा थाना सिटी हाफिजाबाद में दर्ज कर लिया। तफसीलात ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद महर फारूक एहसान की रिपोर्ट में देखिए। हाफिजाबाद के इलाका किला साहब सिंह में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुबैना तौर पर जहरीली मिठाई खाने से 3 बच्चे जाँ बाक हो गए, जबकि 5 दीगर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम मुतासरा बच्चों का ताल्लुक एक मसीह ख़ानदान से है और इन्हें फौरी तौर पर DHQ अस्पताल हाफिजाबाद मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। DPO हाफिजाबाद ने वाक़े का फौरी नोटिस लिया और फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू की। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये शाम के टाइम का है। हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके ये हमारे 8 बच्चे थे और अपेरेंटली जो अभी तक की हमारे पास चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें बच्चों ने कोई जहर आलूद मिठाई खाई है और उसके बाद जो है वो इनको ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली 3 इनमें से एक्सपायर हो गए हैं, वेर एस के 5 की हेल्थ कंडीशंस को सामने रखते हुए उन्हें हम लोगों ने लाहौर जो है वो रेफ़र किया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए। गुज़श्ता रात ज़िली इंतज़ामिया, महकमा सेहत के अफसरान और डॉक्टरों की टीम अस्पताल पहुंची और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। बुरसा का कहना है कि जहरीली मिठाई खिलाई गई है, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई और 3 बच्चे जाँ बाक हो गए। कैमरामैन नासिर अब्बास अराई के साथ मेयर फारूक एहसान, चैनल 5 न्यूज़, हाफिजाबाद। पंजाब कल्चर डे की मुनासबत से असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी खेप हाफिज़ मोहम्मद जुनैर यूनुस ने सेमिनार से खिताब किया और नंबरदारान के वफ़द से मुलाकात की है। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज़ मोहम्मद जुनैर यूनुस ने पगड़ी पहनकर फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दिए। उनका कहना था कि जिस तरह पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन है, उसी तरह से ये ख़ित्ता ज़मीन मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के हुस्न से मुज़य्यन है। ज़िंदा कौमें अपने कल्चर को न सिर्फ ज़िंदा रखती हैं बल्कि उसके फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाती हैं। नंबरदारान हज़रात का सकाफ़ती फ़रोग़ में अहम किरदार है और उम्मीद की जाती है कि मज़बूत अंदाज से इस चीज़ को आगे लेकर जाया जाएगा। इंशाअल्लाह नंबरदारान के ताउन के साथ इलाकाई मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के तारीख़ी दहीरानी प्रोग्राम का दूसरा मरला ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम पुरवकार तकरीब में 23 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का तमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर राजपूत से। तनवीर, बताइएगा। पंजाब के जो प्रोग्राम है दहीरानी, इसके तहत मुल्तान में भी जो है आज वो 23 से ज़ायद जो है इज्तिमाई शादियाँ करवाई गई। वो जोड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके जो अजीज़ व कारब हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में शादी में शिरकत की। इनके लिए मज़े के पकवान तैयार किए गए और इस हवाले से जो शरीक जोड़े हैं इनसे पूछते हैं कि जी वो इस तरह के इक़दाम को क्या समझते हैं। जी वज़ीर आला, आप इस इक़दाम को कैसा समझती हैं? हम बहुत खुश हैं इनके इस प्रोग्राम से। मैं चाहती हूँ कि इनका ये प्रोग्राम चलता रहे। आज मेरी इस प्रोग्राम में शादी हुई तो कल को किसी और गरीब बच्ची की शादी हो, उनके वालिदैन की हेल्प हो। मैं बहुत इनका यही कहना है कि वो वज़ीर आला के इस प्रोग्राम से बहुत खुश हैं और ये जो दहीरानी प्रोग्राम है वज़ीर आला पंजाब का ये जारी रहना चाहिए। इस प्रोग्राम के तहत इनको जो है वो 2 लाख से ज़ायद मालियत का जहेज़ भी दिया गया है और इनके अजीज़ व कारब के लिए खाने का ख़ुसूसी इंतज़ाम भी किया गया है। जी ननकाना साहब में सिख मज़हब का खुशियों भरा त्यौहार बैसाखी मेला इख्तिताम पजीर हो गया है। गैर मुल्की ज़ायरीन ने वालिहाना इस्तक़बाल, बेमिसाल मेहमान नवाजी, बेहतरीन इंतज़ामात, फुल प्रूफ सिक्योरिटी और खूबसूरत आतिशबाजी करने पर ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। इस पर मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद नवीद कंबो की इस रिपोर्ट में। सिख मजहब का खुशियों भरा त्यौहार बैसाखी मेला
खुशगवार यादों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोज तक जारी रहने वाली तकरीबात में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत अंदरूनी पाकिस्तान से हजारों सिख यात्रियों ने शिरकत की, अखंड पाठ, मत्था टेकी व दीगर अपनी मजहबी रसूमात अदा की। सातों गुरुद्वारों के बेहतरीन इंतजाम करने पर और उनको दुल्हन की तरह सजाने पर वज़ीर पंजाब और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। रिहायश, खाना, ट्रांसपोर्ट, सख्त सिक्योरिटी और बेहतरीन आतिशबाजी करने पर जिली इंतजामिया ने हमारे दिल जीत लिए। हम जिली इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान के इंतहाई मशकूर हैं। शेखपुरा में डंपर की रिक्शे को टक्कर 3 अफराद जहाँ बहक और 5 जख्मी हो गए हैं। हादसा चौधरी मिल स्टॉप लाहौर रोड पर पेश आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक डंपर ने रिक्शे को बैक साइड से हिट किया और फरार हो गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जहाँ बहक अफराद की शनाख्त 53 साला मुनीर अहमद, 51 साला नेमत अली और 74 साला मोहम्मद आरिफ के नामों से की गई, जबकि जख्मियों में 57 साला मोहम्मद नवाज, 42 साला नवाज, 22 साला बुरहान, 43 साला साजिदा बीबी और 38 साला हाजी नवीद शामिल हैं। मुरीद के इलाके नारंग मंडी जामिअतुल इस्लामिया फिरोजिया वाला में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और जलसा दस्तार फजीलत का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा, मशाइख और मुफ्तियान कराम समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं मियाँ जमील की रिपोर्ट में। वाला में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और जलसा दस्तार फजीलत का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा, मशाइख और मुफ्तियान कराम समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से किया गया। कारी मोहम्मद अफजल बाजवा, मुफ्ती गुलाम रसूल कासमी, पीर सैयद फैजुल हसन शाह और पीर सैयद सआदत अली शाह समेत उलमा और मशाइख ने खताबात करते हुए कहा कि अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। इसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस्लाम दुश्मन कुफ्तें हमें नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। हमें हर सूरत एक होना होगा। इत्तेहाद उम्मत वक़्त की अहम ज़रूरत और नागज़ीर हो चुका है, ताकि नमूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और इस्लामी इक़दार और रवायात समेत क़िबला अव्वल का दिफा कर सकें। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ह फरमा दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस पर मोहर सबत हो चुकी है। टीम के साथ मियाँ जमील, चैनल 5 मुरीद के। निजकारी के खिलाफ कमीर शरीफ रूरल हेल्थ सेंटर का अमला सरापा एहतजाज बन गया है। अमले ने एहतजाजन सेंटर बंद कर दिया है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अबरार खोकर से। अबरार बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल मैं इस टाइम मौजूद हूँ RIC कमीर शरीफ में। मैं आपको बताऊं कि RIC कमीर शरीफ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। एमरजेंसी जो है वो भी बंद कर दी गई है, OPD जो है वो भी बंद कर दी गई है, और जिस वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मालूमात के मुताबिक, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो है यहाँ के जो स्टाफ है उसने जो है एहतजाजन धरना दिया हुआ है निजकारी के खिलाफ। मैं आपको बताऊँ कि दरवाजे के ऊपर नामंजूर निजकारी नामंजूर के जो है वो बैनर अवेजा कर दिए गए हैं। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो बड़े संगीन मामलात हैं, शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। आने वाले मरीज जो हैं वो यहाँ पे अजलीलो ख़वार हो रहे हैं। तो मेरे साथ एक आने वाले मरीज मौजूद हैं, उनसे जाने के इस हवाले से वो क्या कहते हैं। मेरी मिसेज से चोटें लगी थी, ठीक है सर। मुकम्मल कमीर शहर में मुकम्मल हॉस्पिटल बंद है सर। मेहरबानी की जाए कि हॉस्पिटल खुलाया जाए, मेहरबानी। थैंक यू जी। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का भी यही कहना था कि हज़ारों की तादाद में शहरियों को सहूलत देने वाला ये वाहिद जो मरकज़ है ये मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, जिस वजह से इलाका मकीन जो हैं और आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो शदीद उनको जो है मुश्किलात का सामना है। जी, पंजाब कल्चरल डे के मौके पर कसूर के एक स्कूल में शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। बच्चों ने रवायती लिबास में सखावत से मोहब्बत का इजहार किया। तलबा ने अपनी तहजीब और तमद्दुन से गहरी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने रवायती रंगों को दुनिया के सामने फखरी अंदाज में पेश किया। कसूर से सजाद अंसारी की रिपोर्ट देखिए।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ, ਇਹ धरती साडी माँ वर्गी। कसूर में भी पंजाब कल्चर डे भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया, जहां स्कूलों में रंगारंग तकरीबात में बच्चों ने पंजाब की सकाफत को निहायत खूबसूरती से उजागर किया। रवायती कुर्ते, धोती, परांदे और खुस्से पहने बच्चों ने न सिर्फ अपनी सकाफत से मोहब्बत का सबूत दिया, बल्कि हर जाविये से पंजाब की शान और पहचान को उजागर किया। छोटे बच्चों ने चरखे, हुक्के, डांडिया, चूड़ियों, मटकों और मेहंदी के स्टॉल्स सजाकर हाजरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। पंजाबी कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए, जिससे आने वाली जो नई नस्ल है उसको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि और वो उन सब चीज़ों को याद भी रखेंगे। तकरीब में एक खसूसी झलक वो भी थी कि जब तालबा और तालबात ने रवायती दुल्हा दुल्हन के लिबास पहनकर पंजाब के शादी ब्याह के कल्चर को खूबसूरती से पेश किया। दूसरी जानब DPO कसूर ने भी अपने दफ्तर में पंजाबी वर्षा की पहचान पगड़ी पहनकर दफ्तरी काम का आगाज करते हुए पंजाबी सकाफत से इजहार यकजहती किया। कल्चर डे के मौका पर मुख्तलिफ स्कूलों में उसातिज़ा वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बच्चों की मेहनत को खूब सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, बल्कि इन्हें अपनी सकाफत विरसे पर फख्र करना सिखाते हैं। कि पंजाबी कल्चर ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਅੱਗੇ पहुंचानी चाहिए। पंजाब कल्चर डे के हवाले से बड़ों और बच्चों का रवायती लिबास ज़ेब-ए-तन करना ये साबित करता है कि वो इस पंजाबी कल्चर की सखावत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर पाक वतन में जश्न बहारां की शानदार तकरीबात जारी हैं। इस सिलसिले में सूफियाना कलाम नाइट का इनेकाद किया गया, इसमें शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रंगारंग तकरीब में मारूफ गुलकारों और फ़नकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर पाक वतन मारिया तारिक, मेंबर कौमी असम्बली अहमद रज़ा खान मानिका और ज़िले के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फ़नकारों, खिलाड़ियों और दीगर में एजाज़ी इनामात भी तकसीम किए गए हैं। पाक वतन के शहरियों ने इन तकरीबात को हुकूमत पंजाब की आवाम दोस्त पॉलिसीज़ का आगाज़ करार देते हुए तफरीही मौक़े फराहम करने पर मरीम नवाज शरीफ और ज़िली इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। जतोई में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। दर्ज हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और धूप की शिद्दत ने अवाम को परेशान कर दिया है। शहरियों ने तेज़ धूप से बचाव के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। बाज़ारों में सन ग्लासेस की मांग में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि तिबी माहिरीन का भी कहना है कि शदीद धूप में आँखों की हिफाजत ज़रूरी है। मज़ीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे मुरसलीन हसन से। मुरसलीन बताइएगा। जी, इस वक्त मैं जतोई में मौजूद हूँ। जैसे ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू किया है, वैसे ही शहरियों ने जो है सन ग्लासेस खरीदना शुरू कर दिए। इस वक्त मैं एक सन ग्लासेस के स्टॉल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मजीद। जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो इसी लिहाज से हमारे कारोबार में और हमारे काम में भी इजाफा हुआ है। ऐनक छाँव वाली के हिसाब से। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की ज़बानी सुना। इनका यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही हमारे कारोबार में जो है इजाफा हो गया है। अगर बात की जाए जतोई में दर्जा हरारत की, तो आज यहाँ पर जो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब हमारी यहाँ पर तिबी माहिरीन से बात हुई, तो उनका भी यही कहना है कि शहरी जो हैं अपने घरों से निकलते वक्त अपने सरों को ढांप कर रखें और ऐनक का इस्तेमाल करें, और इसके साथ जो है ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल करें ताकि वो गर्मी से बच सकें। जी, पंजाब में दहीरानी प्रोग्राम का दूसरा फेज़ जारी है। खानेवाल पब्लिक स्कूल में पहाड़ी अजला के 58 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुलमाल सुहेल शौकत बट तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इज्तिमाई शादी की तकरीब में अरकान असम्बली राना सलीम हनीफ, बैरिस्टर उसामा फजल, चौधरी ज़ियाउर रहमान आमिर, हयात हिराज, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान, DPO इस्माइल खाड़क ने शिरकत की है। नए जोड़ों की आमद पर रिवायती झूमर डांस भी पेश किया गया। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत बट ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की तरफ से नए जोड़ों को मुबारकबाद दी। उन्होंने जोड़ों को दहीरानी प्रोग्राम के तहत फ़ीकस 1 लाख रुपए की सलामी पेश की। जड़ावाला के इलाके खड़ियावाला अस्पताल में अनोखा कारनामा। महकमा सेहत के एक अफसर ने
ڈھول کی تھاپ اور آتش بازی کراتے ہوئے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے، جس پر لوگ حیران رہ گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے افسر کی جانب سے انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر پیشہ ورانہ انداز اپنایا گیا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، سیکرٹری ہیلتھ اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی احمد پور شرکیہ کے علاقے موضوع محراب والا پہنچ گئے۔ انہوں نے ایران میں قتل کیے جانے والے محمد خالد کے ورثاء سے تعزیت کی۔ اس موقع پر محمد علی درانی کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر بچوں کی تعلیم اور کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مقتولین کے ورثاء کے لیے 1 کروڑ روپے کے امداد کا اعلان کرے۔ جبکہ جنوبی پنجاب میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، کٹائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مگر حکومتی خریداری سینٹرز کی بندش اور قیمت کا تعین نہ ہونے سے کسان سخت پریشان ہیں اور سونے جیسی گندم اونے پونے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ رجحان سے حسین خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب میں گندم کی فصل کوڑیوں کے دام فروخت ہونے لگی۔ سال بھر کی کمائی اب ہر طرف کسانوں کی دہائی سننے کو مل رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی قیمت مقرر نہ ہونے اور سرکاری خریداری سینٹر کی بندش سے کسان مارکیٹ میں گندم اونے پونے فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ خرچے کافی زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو گندم کا ریٹ بہت کم ہے، جو کہ 1700-1800 سے لے کر 2000-2100 تک چل رہا ہے، جس کا حساب کتاب اندازہ لگایا جائے تو وہ بہت ہی کم ہے اور خرچے بہت زیادہ نہیں نکل رہے۔ دوسری جانب بڑھتے زرعی اخراجات، مہنگی کھاد، بیج سے متاثر کاشتکار دوہری اذیت کا شکار۔ کسان گندم 1800-2000 فی من فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ اس سے فصل پر کیے گئے اخراجات بھی پورے کرنے مشکل ہیں۔ میں جی گندم کا ریٹ جو ہے وہ 2300 سے 2400 چل رہا ہے اور گندم کا جو خرچہ ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، یعنی کہ ڈی اے پی 12000-13000 اور یوریا جو ہے وہ 4400-4500 کا مل رہا تھا۔ یہ جو ہے وہ گندم ہمیں نقصان دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز سے اپیل کرتے ہیں کہ گندم کی ریٹ تھوڑا بڑھا دیں۔ اگر حکومت زراعت کی ترقی کسان کی خوشحالی چاہتی ہے، اجناس کے مناسب ریٹس کا تعین کے ساتھ ساتھ کھاد بیج کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کسانوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت خریداری سینٹر کھولے اور مناسب قیمت مقرر کرے۔ اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔